Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. And don't forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है। हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये शुक्रिया। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic stocks plunge around more than 3.5%. Sensex closes below 48,000 mark. Nifty settles near 14,300 level. Rupee weakens to trade beyond 75 rupees per dollar mark. And gold future rises above 46,700 rupees per 10 grams. प्रमुख शेयर सूचकांक लगभग 3.5% लुढ़ के। सेंसेक्स 48,000 के नीचे हुआ बंद। निफ्टी 14,300 के स्तर के नजदीक पहुंचा। रुपया कमजोर होकर पहुंचा 75 रुपए प्रति डॉलर के पार और सोना का वायदा मूल्य 46,700 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आज देखी गई है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग 3.5% पे लुढ़क गए। कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ने के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में नुकसान का असर घरेलू बाजारों पर भी देखा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स गिरकर 48,000 के स्तर से नीचे, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी फिसलकर 14,300 के करीब आ गया। सेंसेक्स 3.36% के नुकसान से 1,708 अंक लुढ़ककर 47,883 पर बंद हुआ। निफ्टी 3.39% की कमी से 500 अंक गिरकर 14,311 पर आ गया। व्यापक बाजार में गिरावट सेंसेक्स से अधिक रही। मिड कैप इंडेक्स 5.32% टूटा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 4.81% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today plunged around 3.5%. The domestic stocks tumble in sync with losses in the global equity markets and with resurgence of COVID-19 infections. The Sensex at the Bombay Stock Exchange fell below 48,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange slipped to trade near 14,300 level. The Sensex plunged 1,708 points or 3.44% to trade at 47,883, and the Nifty declined 524 points or 3.53% to trade at 14,311. The broader markets at the BSE fell more than the Sensex. The mid-cap index tumbled 5.32%, while the small cap declined 4.81%. In the Sensex pack, shares of 29 out of 30 companies plunged except Dr. Reddy Labs, which gained 4.8%. IndusInd Bank was the top loser
as it tumbled 8.6%, followed by Bajaj Finance, which declined 7.4%. SBI fell 6.8%. ONGC, Titan and Mahindra ended more than 5% down. And in the sectoral indices, all the 19 sectors stumbled. Realty sector stocks lost the most, slipping 7.7%. Finance, power, metal, auto, industrials and basic materials fell more than 5% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 2,502 companies declined while 487 gained. Shares of 172 companies remained unchanged. और प्रोग्राम के आज सबसे पहले कॉलर हैं हसमुख जी मुंबई से फोन लाइन पर। हेलो। या नमस्ते सर। जी हसमुख जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है कि भारत के वर्ष के जो ये 9.5% फिस्कल डेफिसिट है, इसको फाइनेंस आरबीआई किस तरह से करने वाली है? कितना पैसा बाहर से उठाएगी और कितना पैसे की नोट प्रिंटिंग होगी? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हर वर्ष कितनी नोट की प्रिंटिंग होती है? इसका कोई रिकॉर्ड्स कहीं से? जी हरवीर जी। देखिए ये ऑब्वियस है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसके लिए सरकार के पास उपाय है कि वो बोरोइंग्स करें, और बोरोइंग होती है। कुछ हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी अपना टारगेट रखते हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से टारगेट्स हैं, हालांकि वो अकाउंटेड इनकम होती है। बट फॉर फिस्कल डेफिसिट और ये नोट प्रिंटिंग का कोई ऐसे एज सच क्लियर मैंडेट नहीं होता कि कितना नोट प्रिंटिंग करके कंपल्सरी उधर से करना है। तो ये डिपेंड करता है कि बोरोइंग प्रोग्राम कैसे जाता है। तो मेजर शेयर जो स्मॉल सेविंग्स फंड है उससे आता है, और फिर अदर मार्केट में बाकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू आरबीआई बोरो करता है, उसके थ्रू इसकी फाइनेंशियल। Well, we are joined in by Sunny Singh from Delhi. Sunny, welcome to the show. अपना सवाल पूछें। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा एक प्रश्न है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है ये, कि आरबीआई जो अपने नोटों को प्रिंटिंग करता है, अगर वो असीमित रूप से प्रिंटिंग करे तो देश में क्या उथल पुथल होगी? बस यही छोटा सा प्रश्न है। हरवीर जी। देखिए, एक तो ऐसा इतना इजी नहीं होता कि आरबीआई उस तरह से प्रिंट करेगा, और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर आपके पास उसका सिस्टम नहीं है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आपका जो है उसका जो कि लिक्विडिटी, सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ने से उसके अकॉर्डिंगली आप वेल्थ क्रिएट नहीं करते, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए नॉट प्रिंटिंग इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया फॉर एनी central bank and the government. Yeah, Harveer ji, talking of the Sensex plunge today, the bloodbath that we saw, the street saw the bloodbath yet again today, with almost all the sectors ending in the red in the BSE pack, and the broader markets fared worse. So how do you see things panning out in the next few sessions? Do you see the indices bottoming out, breaching all the support levels, or there is some more wind left in the sails? Actually, you see, numbers are very negative numbers. We are seeing on the front of basically the COVID numbers touched 168,000, the highest there, and it is increasing geographical wise also. So, and affecting the economic activities and semi-lockdown, night curfews, and all these things are coming which will directly affect our economic recovery. Recently, this Barclays has just given an estimate that if we go like this, it will affect more than $1 billion per week. So, and it can go up to May. So, all these are the negative things. Other is that inflationary pressure is also there. The number just today arrived for inflation, that is also more than I think touching 5.5%, and IIP basically shrink. Our industrial production has shrink. All these basic COVID-2 problem
economic activities like manufacturing activities are basically contracting, and inflation is going up. All these things together, and globally there is a fall in the market. That's why today there is a huge crash in the stock market. At the same time, we have to see the developments in next few days very closely, so that but volatility in the market will be there. That's why we have seen the pressure on the rupee also, and even a country like US and other economies, everybody is just in wait and watch situation. We have to see accordingly that the market will go in this direction. हरवीर जी, जो आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और एक साथ ही यहाँ पर एक जो डिपॉजिटरीज के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अप्रैल में अब तक भारतीय बाजारों से 929 करोड़ रुपए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो निवेशकों ने निकाल लिए हैं। और क्या ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी जो पैसा निकाल रहे हैं, क्या उनको भी अब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ने की उन्हें भी एक ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, अब हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के जो 3 महीने उन्होंने काफी अच्छी खरीदारी की भारतीय बाजारों में। देखिए, अभी भी जो हमारा ये है, जो एस्टिमेट है जीडीपी ग्रोथ का, वो डबल डिजिट में ही है। जो तमाम सारी जो एजेंसीज ने अभी तक, मल्टीनेशनल एजेंसीज ने जो एस्टिमेट किया है, बट इसके साथ हमें देखना है कि एक तो हमारे यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी कम हुआ है। अगर आप देखो कि डिपॉजिट रेट्स और आरबीआई ने पॉलिसी को वही रखा है, रेट्स पुराने रखे, बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने से उसका असर है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में अपवर्डली मोबिलिटी है, तो वो अपवर्ड मोबिलिटी जो है, जो फ्लो है फॉरेन मनी का हमारे मार्केट्स में और हमारी इकोनॉमी में, उसको रोकता है। दैट्स वाई ये, और रूपी डेप्रिशिएट भी हो रहा है इस वजह से। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्लो को, खासतौर से मार्केट के, उसको थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहा है। और ये जो पुल हो रहा है, आपने जो नंबर बताया कि ऑलरेडी जो मार्केट से निकला है पैसा, वो सब रीजन उसके पीछे यही है, क्योंकि शायद अभी लगता है मार्केट में, जो अभी आप देखो कि हम जो पीक पर जहाँ पहुंचे थे, वहां से करीब 8-9%, 9% हम नीचे आ गए। सो इन दिस सिनेरियो लोगों को लगता है कि वॉलेटिलिटी अभी है, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग उनको नहीं लगता है रिटर्न। दैट्स व्हाई दे आर पुलिंग आउट। Well, joining in is Arun from Delhi. Arun, welcome to the show. सवाल पूछें अपना। Arun? It seems we have lost Arun. Now, coming on to the next story, the rupee at the foreign exchange market today weakened to finish beyond 75 rupees per dollar mark. And the domestic unit depreciated 31 paise to 75 rupees and 6 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also fell 0.11% to 92.06. So, Harveer ji, talking of rupee again, does the slide in rupee over the last couple sessions actually worry you, especially if we see this majorly as a result of the GSAP scheme of the RBI, which we saw in the bi-monthly monetary policy, and also the strengthening of the dollar? Yes, these two factors, because bond yield is going down. It was expected at 6.5%, but now touching 6%. The one reason is that, and liquidity is there in terms of rupee. So that's, and other factor is that dollar index is strengthening. So these two things having a pressure on rupee, and being this COVID resurgence, and it will directly affecting exports. So our forex earning will also get affected due to that. So all these multiple factors are affecting Indian rupee situation in the market. गाजियाबाद से गौरव फोन लाइन पर हैं। हेलो हरवीर जी नमस्कार, ये मार्केट मंत्री सिंह को नमस्कार। सर, मेरा सवाल है ये एग्रीकल्चर के ऊपर है। ये रूरल इकोनॉमी इस साल कैसे हो रहेगी? क्या मानसून नॉर्मल होने वाला है, और क्या जो लास्ट ईयर की जो अच्छी फसल थी उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रूरल सेक्टर ज्यादा चलेगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन अर्बन एरियाज, रूरल इकोनॉमी से अच्छी चलेगी?
देखिए, रूरल इकोनॉमी का फॉर्चुनेटली एक नेचुरल प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, और पिछली बार जब लॉकडाउन लगा, वो सब चीजें रेस्ट्रिक्शन थी, क्रॉप हार्वेस्टिंग हो रही थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने काफी सारा डील दी और एक्टिविटीज को नॉर्मल रखा। तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही सेक्टर था जो पिछली बार ग्रोथ लेकर के आया 2.4% का, और उसने ओवरऑल इकोनॉमी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है इकोनॉमी, उसको थोड़ा बचाया भी और ज्यादा नीचे गिरने से। और अगर आप देखें जो रूरल सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, इवन मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको भी उतना नुकसान नहीं हुआ, उनको भी स्थिति ठीक रही है। अभी भी अगर हम देखें, जिसमें 2-3 मानसून नॉर्मल हमारे रहे हैं, अभी मानसून का प्रेडिक्शन तो नहीं आया है, आने वाले दिनों में आ जाएगा। सो वी होप दैट देयर विल बी ए नॉर्मल मानसून। और रबी बहुत अच्छा रहा है हमारा, वेदर वाज एकदम परफेक्ट था। जो अभी तक ठंड रही, और आई थिंक जो अभी रबी का प्रोडक्शन में फूड ग्रेड प्रोडक्शन वो रिकॉर्ड टच करेगा, प्रोक्यूरमेंट शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि फार्मर्स के हाथ में पैसा आ रहा है। और दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और रूरल इकोनॉमी में ये है कि जैसे ऑयल सीड है, पल्सेज है, वहां पर फार्मर्स को कहीं जगह जगह एमएसपी से भी ज्यादा प्राइस उनको मिली है, बिकॉज इन चीजों का जो ग्लोबल प्राइसिंग है उसमें एडिबल ऑयल का प्राइसिंग काफी ऊपर गया है। तो वो फायदा हमारे फार्मर्स को मिला है बेहतर प्राइस के रूप में। इतनी के लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा गया है रूरल इकोनॉमी में, और ये फैक्ट है कि जो पैसा रूरल इकोनॉमी में जाता है वो सारा का सारा सिस्टम में लौट के आता है, बिकॉज सेविंग्स कम है, खर्चा उसमें पूरा होता है। तो इतनी जो रूरल मार्केट को जो लोग टारगेट करते हैं, वो ऑटो सेक्टर हो या एफएमसीजी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, एंड ट्रैक्टर है, एग्रोकेमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब के लिए तो अभी भी स्थिति सकारात्मक ही दिखी है, लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। Our next caller is Ashok Kumar from Modi Nagar. Ashok जी, welcome to the show. सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार। और मेरा हरवीर जी आज सवाल आपसे ये है कि ये जो मेटल सेक्टर और आईटी सेक्टर, क्या दोनों का बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया, या मार्केट अब क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए अब हमें इन्वेस्टर को? हाँ, उसे बता दीजिए जरा प्लीज। देखिए, मेटल में तो स्टॉक रिफ्लेक्टिंग, अगर मेटल का आप देखें, जो मेटल कंपनीज हैं वो तो बेहतर स्थिति में रही हैं, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। अभी आज ही सेल की जो चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव आया, बिकॉज स्टील प्राइसेस में काफी इम्प्रूवमेंट आया और उनके जो सेल्स भी बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आईटी डेफिनेटली, आईटी वी हैव टू सी कि ग्लोबली किस तरीके का हम लोग उसमें अर्निंग्स हमारी कंपनियों को होती हैं, और मे भी कुछ पहले जो प्राइसेस ऊपर गई होंगी, स्टॉक्स की कुछ करेक्शंस आए हैं, तो इसलिए फंडामेंटल्स उनके लिए अभी भी ठीक स्थिति में है मेरा कहना। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से सुनील जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी सुनील जी, कार्यक्रम में स्वागत। क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मुझे पूछना है, अपना जो करेंसी का रेट अभी 2-3 रुपए बढ़ गया था हाल में, तो अभी इंडियन इकोनॉमी उतनी शॉर्ट टर्म स्पाइक है, या इसको आप कैसे देखते हैं डॉलर टू इंडियन रुपी गोइंग फॉरवर्ड? एंड सेकंड है मेरा बैंकिंग सेक्टर को लेके, जो इतना गिरावट आ रहा है, वेदर एनी स्पेसिफिक इश्यू इन दिस सेगमेंट, और ये एक टेम्पररी फेज है? देखिए, अभी हमने रुपी के बारे में बात की है, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन और जो वीक हुई है, डिटेल में अभी हमने बात की है कि क्या क्या फैक्टर उसके पीछे हैं, उसको लेकर के मेरे ख्याल से हम उसको रिपीट ही करेंगे अगर वही बताएंगे। तो लिक्विडिटी है हमारा, जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना है, multiple factors to repeat. Yes, we think we have already discussed the question. Yes, second question. And in case of banking, there is some fear also that if lockdown goes and ये restriction आता है, तो कहीं ना कहीं NPH के ऊपर असर आ सकता है। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी सारे डेवलपमेंट हुए, कंसोलिडेशन हुआ है, बैंक्स का मर्जिंग प्रोसेस पूरा हुआ है, वीक बैंक का पूरे बेहतर बैंक्स में गए हैं, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन भी कर रही है। It is there, but still there is a apprehension के NPH के इश्यू अभी बरकरार है, और
अगर क्रेडिट ऑफटेक ठीक से नहीं होगा तो फिर बैंक का जो है जो उनके बारे में जो प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेहतर नहीं है. Right, we are joined in by Ravi from Mumbai. Ravi, welcome to the show. सवाल नमस्कार सर. नमस्कार, सवाल पूछें अपना. सर मुझे ये पूछना था कि मुझे कुछ मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट की इन्वेस्टमेंट करनी है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. तो उसमें आरबीआई बॉन्ड एक ऑप्शन कैसा रहेगा एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट ऑफिस एंड एफडीज इन द बैंक? राइट, परवेज जी. देखिए, अगर आप ये देखें कि जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के जो रेट्स हैं वो अभी भी रिजनेबली ठीक है. अभी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है, हालांकि कुछ आप जा सकते हैं बॉन्ड्स में जो बेहतर स्थिति में जो बॉन्ड्स हैं उसमें रेट्स मोर देन 6% हैं. बट यू हैव टू लुक, बेसिकली मेरा ओपिनियन है कि आपको स्मॉल सेविंग्स में जितना जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में स्टिल, क्योंकि हालांकि दोनों चीजों को लिंक भी किया था गवर्नमेंट ने. जो अभी पॉलिसी हमारी है स्मॉल सेविंग की और बॉन्ड का जो ये है यील्ड और इंटरेस्ट का, उनके बीच में एक कनेक्ट भी किया गया है दोनों के बीच में. तो यू हैव टू लुक बोथ विच बॉन्ड इज गुड एट दिस स्टेज फॉर यू, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्लस टैक्सेशन के क्या प्रोविजन है उसको लेकर के, एंड स्मॉल सेविंग. Then you can do a cost benefit analysis. मनोज दिल्ली से अगले कॉलर हमारे. जी मनोज जी. हाँ सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक आग्रह है कि आप अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें. हाँ जी सर. जी हाँ, आप सवाल पूछिए आप. हाँ जी सर. हेलो. जी हाँ, हेलो. आप हम सुन पा रहे हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए. बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ जी, लेकिन लगता नहीं था फोन. दूसरा जो क्वेश्चन था ये था कि हम लोग सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस वगैरह देखते हैं जी. उसके बाद जो एनालिस्ट वगैरह जो बोलते हैं तो कुछ दिन तक तो उनके शेयर बताए हुए बहुत बढ़ते हैं, उसके बाद वो ऐसे जाते हैं नीचे. तो इसका क्या रीजन है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, उस पर हम लोग सीधे तो टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का. लेकिन अगर आप देखें कि शुरू में ही जब कार्यक्रम की शुरुआत होती तो कहा जाता है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक कंपनी या स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो है. तो कहीं कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी होता है. और पीछे अगर आप देखो कि एक बड़े चैनल का एंकर के खिलाफ कुछ केसेस भी हुए थे, कुछ उस तरह की चीजें आई थी इन्वेस्टिगेशन में. तो वी कांट से एक्चुअली उनके बारे में टिप्पणी करना ठीक है. बट इसीलिए हम कहते हैं कि हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे. तो कंपनी स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में कोई राय नहीं. राइट. सो आवर नेक्स्ट कॉलर इज रमेश फ्रॉम दिल्ली. रमेश जी, वेलकम टू द शो. स्वागत है, सवाल पूछिए. See, this is my question is, with the falling market, is this the right time to invest because the equity markets are falling, or is this the bottom, or do you subscribe to investment now or to delay? A very common question for all the investors. Yes, and all the traders. Yes. One thing is clear, market always tests your appetite for risk. आपकी रिस्क की क्षमता कितनी है वो उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट वोलेटाइल है और ये वोलेटिलिटी ऐसा नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाएगी. तो यू हैव टू लुक अबाउट योर दिस थिंग लॉन्ग टर्म अप्रोच. हाँ, ये एक फैक्ट है कि मार्केट कभी भी वोलेटिलिटी में नीचे जाता है, उसके बावजूद अगर आपका एक लंबा एक इन्वेस्टमेंट का आपका स्कीम है कि आप 2 साल 3 साल इन्वेस्टेड रहेंगे, उस स्थिति में आप इस वोलेटिलिटी के बावजूद बेहतर स्थिति में रह सकते.
और अब रुख कर लेते हैं एशियाई बाजारों का। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। निवेशकों ने सतर्कता के साथ मुनाफा वसूली की। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% नुकसान में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% टूट गया। जापान की निकेई में 0.8% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स 0.3% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार मिला जुला देखा गया। लंदन का FTSE 100 0.3% के नुकसान में था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट कॉलर इज MC Durai फ्रॉम कोलकाता। वेलकम टू द शो सर। MC Durai रादर। नमस्कार। सवाल पूछें अपना। सर मैं ना IFCI बॉन्ड खरीद के आया था जी। वो 10 साल के लिए था। वो तो दिसंबर में वो मैच्योर हो गया। तो क्या हुआ मेरा ना उस टाइम मैं दूसरा जगह में था, अभी ट्रांसफर होके कलकत्ता में आ गया। तो मेरा ना बैंक जो था ना बैंक चेंज हो गया इससे मतलब, मगर पहले का जो अकाउंट था बैंक का वो उधर ही पड़ा रहा, उसको मैं कुछ नहीं किया। अभी मैं क्या किया, कलकत्ता से मैं स्पीड पोस्ट किया और ईमेल भी किया है जे मेरा बैंक अकाउंट अगर चेंज हो गया, मेरा IFCI का जो बॉन्ड है इतना नंबर है, मगर 1 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा IFCI से। जी हरवीर जी। मेरे ख्याल से उनका जो ये है एक जो विवाद सेल है वहां पर आप फोन कर लीजिए। दे आर सम फोन नंबर फैक्स आप उतना उनको बता दीजिए। देखिए जब बॉन्ड मैच्योर होता है उसके पहले यूजुअली जो कंपनी है वो आपको एक लेटर भेजती है कि आपके डीमैट अकाउंट में और ये जो बॉन्ड के अगेंस्ट आपने जो अकाउंट दिया है वो ठीक है क्या या आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो आपको एट द पर्टिकुलर कट ऑफ डेट को बताना होता है। तो उस डेट में अगर आप बता देते तो फिर वो पैसा आपके उसी अकाउंट में जाता है मैच्योरिटी का। तो इसमें कोई अगर चेंज है पहले तो आप जो अकाउंट नंबर आपका वहां था वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो अकाउंट में आपका एग्जिस्ट करता है हो सकता है कि ऑटोमेटिकली मनी वहां ट्रांसफर हो गई हो आपके उस अकाउंट में, या इफ दैट अकाउंट इज स्टिल एक्टिव। क्योंकि आपने कोई और ये भी आपको देखना चाहिए कि क्या आपने उस तरह के कम्युनिकेशन को वो किया है, उसको जवाब दिया है या नहीं दिया। ये दो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। And now talking of oil, the oil prices today rose amid hopes that fuel demand is picking up in the United States as the summer driving season approaches. The rollout of the COVID-19 vaccinations also accelerated the upward trend. However, increasing coronavirus cases worldwide capped the gains. In the intraday trade, the Brent was trading around $63.80 per barrel, while the WTI crude prices were around $60.10 per barrel. Harveer Singh ji, very briefly, the Brent and the WTI have also not escaped the wrath of the COVID wave, both in the first and the second one. But the recent production spike by the OPEC plus countries, fueled by increasing demand, have infused fresh life in the crude. Now, what's your take on the sector with fresh COVID restrictions likely to hit demand yet again, with aviation industry surely to get wrapped on the knuckles? Actually, definitely it is based on the what kind of recovery in the global economy is happening, and what is the energy requirements are there, so that it is a direct connection with that. Otherwise, in the last spike we have seen what happened to the right, sir. So if they are hoping that the activities are increasing and consumption will go up. Right, sir. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के अप्रैल वायदा मूल्य में प्रति 10 ग्राम 130 रुपए की वृद्धि हुई। सोने का वायदा मूल्य 46,720 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। मई सौदों के लिए चांदी की वायदा कीमत 170 रुपए बढ़कर 67,150 रुपए प्रति किलोग्राम रही। हरवीर जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic stocks plunge around more than 3.5%. Sensex closes below 48,000 mark. Nifty settles near 14,300 level. Rupee weakens to trade beyond 75 rupees per dollar mark. And gold futures rise above 46,700 rupees per 10 grams.
And that's all we have time for this edition of Market Mantra. Namaskar, till we meet again the next time. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.